Salutation to the God. God means actually immortal consciousness, eternal consciousness, which always remains. This is according Vedanta philosophy. Vedanta, this word, Sanskrit word, Vedanta. God means actually immortal consciousness, which is always with the full of pleasure, which is always with the pleasure, always. So we should realize this at present, because the present is in our hand. We can do now, because now time, the present time is our time, controlled by us, present. So at present we should decide, we should clearly confirm that I am according God. We should think, we should realize, we should accept, we should always realize continuously. Then our future will be according to God. There is no doubt. This expression from the point of view, supreme philosophy of the world, that is Vedanta philosophy, and presented by President of Immortal Pleasure Center in Nepali, Akhanda Sukha Kendra, from Nepal country. From Nepal, Bhairava, we are telling and listening about our immortal nature, that is actually God. According to reality, according supreme reality, according supreme truth point of view, we always are according God. This happens according immortal consciousness. Consciousness means our inner, our own inner realization, always realization. Actually, we are always according God. But what we have done mistake, that easily we say we are a body, we are from world. My name such such, my caste such such, my address such such, my now I am doing such such such. This type of thinking always we are doing, which is uh, we cannot get according sound sleep. The sound sleep is the example of the experience of the God. In sound sleep, the example from supreme spiritual books about sound sleep. There nothing, no address, no age, no name, no caste, no country. Only there is a realization of the God. That is a consciousness, pure consciousness, where is full of pleasure. That is full of pleasure.
today. Today means 2024 November 11th. Today, Monday. We should decide. Decision we should do. Main thing depends upon decision. What is your opinion himself? That is the fact. So if we realize always we are God, God we are, then we can be God, no doubt. This is the main feature of supreme philosophy of the world, that is Vedanta philosophy. From the help of supreme philosophy, that is Vedanta philosophy, according to that, if we follow, at present time we can convert into the God. There is no doubt. About this I explain in Indian language and Nepalese language. अभिवादन परमात्मा को, परमात्मा ही हम लोगों का असली स्वरूप है, हरदम है ये परमात्मा सबके भीतर हरदम है। संसार का जो भी हो, बच्चा युवा वृद्ध जो भी हो, सबके भीतर केवल परमात्मा का अनुभव है, लेकिन हम लोग भूल रहे हैं। हम लोग तो नाम के ऊपर, जात के ऊपर और उम्र का ऊपर, और जो है अपना पता क्या है, अपना माँ बाप का है क्या है, साथियों क्या है, पुत्र परिवार क्या है, घर परिवार क्या है, इसमें हम लोग जुट रहे हैं, जो वास्तव में ड्रीम है, ड्रीम, सपना। ड्रीम मीन्स ऑलवेज फॉल्स, दैट कैनॉट स्टे लॉन्ग। If we think, only at that time we can feel, that's all. And feeling does not stay, comes, goes, comes, goes, does not stay mind feeling. और फीलिंग हम लोगों का जो मन का वृत्ति है, संसार तो मन का व्यापार है, मन का खेल है, जन्म मृत्यु तो मन का खेल है, शरीर संसार तो मन का खेल है, मन वृत्ति है, वस्तु नहीं है ये, वस्तु तो परमात्मा है। इसलिए ये जो हम कह रहे हैं, ये वेदांत फिलोसॉफी के अनुसार कह रहे हैं, वेद का निचोड़ जो वेदांत है, जो संसार का सबसे ऊपर है, वेदांत फिलोसॉफी, ये अनुसार हम वर्णन कर रहे हैं। अभी सबका हरदम परमात्मा का स्थिति है, नेचुरली, प्रकृति के रूप में हम सब परमात्मा के रूप में रहे हैं। वो स्वयं प्रकाश को लेके, शुद्ध चैतन्य को लेके, अमर आनंद को लेके, ये हरदम है, विद्यमान है, लेकिन हम लोग भूल रहे हैं और हम लोग संसार के पीछे दौड़ रहे हैं, शरीर के पीछे दौड़ रहे हैं। हमारा इतना उम्र है, हमें ऐसा है, हम बहुत सूरत है, या बहुत हम सूरत नहीं है, हम मोटा है, हम पतला है, गोरा है, काला है, ये सब में हम लोगों का जो समय बीत रहा है वो स्वप्न की तरह है, सपना की तरह है, जो नहीं ठहरता है। देखते समय, फीलिंग करते समय सच्चा जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में वो नहीं है। स्वप्न के अनुभव में भी वहाँ हर कुछ दिखाई देता है, पुत्र परिवार सब दिखाई देता है, जगह जमीन इधर उधर सब दिखाई देता है। उस टाइम में सच है, जब हम लोग सपना देखते हैं उस टाइम में सत्य है, लेकिन वास्तव में झूठा है, क्योंकि जागने के बाद हमको कुछ भी वहां नहीं मिलेगा, जागने के बाद कुछ भी नहीं मिलेगा। वैसे ही हम जब ये जो शुद्ध चैतन्य है, जो चेतन है, केवल परमात्मा रूप है, जो अमर है, अगर इसमें हम लोग जागा जाए तो सीधे परमात्मा को अनुभव होगा
और जैसा जागते समय स्वप्न सब छूट जाता है, वैसा ही परमात्मा को लेने से संसार सबसे छूट जाता है, क्योंकि वो स्वप्न की तरह है। लेकिन जो सुषुप्ति, जो गाढ़ा निद्रा है, जो साउंड स्लीप है, ये उपनिषद का कहना है, ये जो है परमात्मा का अनुभव का उदाहरण है। अगर इसको ले ले तो हम लोगों का अभी से ही परमात्मा में स्थिति बनते रहेगा, जहाँ आनंद ही आनंद है, यहाँ कोई टेंशन नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई डर का भावना नहीं है, वहां कुछ मौत जन्म का चक्कर नहीं है, केवल आनंद ही आनंद है। यही कारण वेदांत दर्शन है संसार में सबसे ऊंचा में रह गया है, लेकिन व्यवहार में ये नहीं पाया जाता है। संसार के जो बुक्स है, पाठ्यक्रम है, वो तो लगभग 90% केवल संसार के बारे में वर्णन किया है, जिससे ये जो खास परमात्मा है उससे प्राय सब वंचित रहे हैं। परमात्मा के ज्ञान पाने के लिए सब वंचित रहे, क्योंकि पाठ्यक्रम में हम लोग नहीं देख पाते हैं। इसलिए ये जो ज्ञान है बहुत छिपा के रखा गया है, बहुत छिपा के रखा गया है, क्योंकि संसार में जो पाठ्यक्रम है संसार के बारे में है, अपना स्वरूप परमात्मा है ये नहीं कहता है। लेकिन जो वेद का निष्कर्ष वेदांत है, उपनिषद शास्त्र है, जो गीता का कहना है, अगर उसको सहारा ले लें तो सब संसार का आदमी ये जानने में सफल होता है कि हम लोगों का स्वरूप परमात्मा है और सारी संसार स्वप्न के तरह मिथ्या है। लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसका शिक्षा 100 में 1% कहीं कहीं लागू है, 79% नहीं है। इसलिए संसार असली ज्ञान से विमुख है, ये सही बात है। ये जो कह रहे हैं आज का मतलब कार्तिक शुक्ल पक्ष दशमी तिथि, आज सोमवार, और विक्रम संवत के अनुसार 2081 कार्तिक 26 गते सोमवार। ये कह रहे हैं अध्यक्ष अखंड सुख केंद्र नेपाल देश से। आधार है वेदांत, संसार का सबसे ऊंचा दर्शन है वेदांत, वही अनुसार यह कहा गया है। कह रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है, शक करने का बात यह कुछ भी नहीं है, क्योंकि वेदांत शास्त्र जो है सबको परमात्मा का रास्ता दिखाता है। अगर इसको हम लोग अनुसरण करेंगे, ले लेंगे, तो संसार का हम लोग सब वर्तमान में ही परमात्मा में हम बदल सकते हैं। यही बात नेपाली में भाषा में अभिवादन सबैलाई, सबै मतलब परमात्मा, परमात्मा नै यथार्थ हो, स्वयं प्रकाश, अखण्ड चैतन्य आनन्द रूप परमात्मा मात्रै हो भएको वस्तु, अखण्ड चैतन्य आनन्द रूप परमात्मा मात्रै हो भएको वस्तु। यो भन्दा अरु कुनै केही त्यो सपना बराबर हो, त्यो ठहर्नेवाला छैन। ठहर्नेवाला हो अखण्ड चैतन्य आनन्द रूप परमात्मा, जो संसार का हामी सबैको सधैँको अमर स्वरूप हो, मुक्त स्वरूप हो, मोक्ष स्वरूप हो, परिपूर्ण स्वरूप हो। यो संसारको सबैभन्दा उच्च दर्शन जो वेदान्त दर्शन हो, त्यो अनुसारको भनाइ हो। त्यसकारणले यसमा सरासर विश्वास गर्नुबाट, लिनुबाट संसारका हामी सबैको वर्तमानमा परमात्मामा परिणति भएर रहिरहनु सम्भव हुन्छ। बाँकी रह्यो हिजो अस्तिका जो कामकाज हो, त्यो आफ्नो आयु अवधि हुँदासम्म, भोलि पर्सिसम्म रहन्छ, त्यसमा कुनै चिन्ता लिनु पर्दैन, घटबड पनि हुँदैन, किनकि त्यही भोग्न आएको हो, त्यसमा घटिबढी हुँदैन। यसकारणले भित्रबाट परमात्मा मात्रमा रहिरहनु पर्यो, बाहिरबाट आइपरेका कामकाजहरू जस्तो हिजो अस्ति गरिए थियो त्यस्तै भोलि पर्सि पनि गर्ने, यसमा केही विरोध छैन। तर वास्तवमा परमात्मा रूपले भित्रबाट सधैँ रहिरहेको हुनु पर्यो। यो आफैले गर्ने हो, गर्नुपर्छ। अहिले समय भएको छ, यति नै गरौँ। हरिओम दर्शक।